Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. Today we are going to learn lesson number 6, Tom's Sawyer Toe. This is the story about Tom, and see, this is the picture of Tom. Let's discuss the story of this lesson. Tom Sawyer Toe. Tom is the main character of this lesson. Sawyer means pen, toe means पैर का अंगूठा. Let's start with the starter. What do you do when you don't want to go to school? Do people at home let you stay back? What do they say? Means जब आपको स्कूल नहीं जाना रहता है तो आप कौन सा बहाना करते हो? क्या आपके घर के लोग आपको घर पे रहने के लिए बोलते हैं? What do they say? तो क्या बोलते हैं? What do you do when you don't want to go to school? So people like your parents, your grandmother, your brother, your sister, do they say to stay back at home when you don't want to go to school, or what do they say? Now this story about Tom. The story about Tom. Why does he don't want to go to स्कूल? ये जो स्टोरी है टॉम के बारे में है. जो टॉम है उसे भी स्कूल नहीं जाना रहता है. नाउ सी द स्टोरी. टॉम स्वेयर वॉज अनहैप्पी. इट वॉज 7 o'clock ऑन मंडे. टॉम स्वेयर वॉज अनहैप्पी. टॉम वॉज वन बॉय and he was unhappy. Why he was unhappy? Because 7 o'clock and it was the day on Monday. So Monday is the first day of the week, isn't it? Yes, and it was 7 o'clock. The time to go to school means स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन वो स्कूल के लिए रेडी नहीं रहता. That's why Tom Sawyer was unhappy. He wished he could stay at home, but there was nothing wrong with him. Suddenly he discovered something. One of his teeth was loose. Then he wished that he could stay at home, but there was nothing wrong with him, so that he could stay at home. Then suddenly he got an idea. And what was the idea? One of his teeth was loose and two broke. फिर उसे इच्छा होती है कि मैं अभी घर पे रहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूँ? मेरे साथ तो कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ है. तो फिर अचानक याद आता है उसे कि उसका जो एक दांत है वो हिल रहा है और पड़ने वाला है, गिरने वाला है. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ग्रोनिंग. ग्रोनिंग मीन्स मेकिंग नॉइज. वो चिल्लाना चालू करता है, आवाज़ करना चालू करता है. व्हेन ही रिमेंबर्ड समथिंग. इफ ही कंप्लेन अबाउट अ बैड टूथ, हिज आंट वुड पुल इट आउट. दैट वुड हर्ट. No, that would not work. So he was about to groaning. फिर वो जोर से चिल्लाना चालू करता है, आवाज़ करना चालू करता है. Groaning means making noise as if in pain. Means आवाज़ करना चालू कर देता है. फिर उसे अचानक याद आता है कि इफ़ ही कंप्लेंट अबाउट द बैड टूथ, अगर उसने बैड टूथ के बारे में कंप्लेंट की तो उसकी आंटी वो दांत निकाल देगी, जिससे कि उसको ही दर्द होगा. नो, दैट्स वुड नॉट वर्क. ये जो आइडिया है ये काम करने वाली नहीं है. मीन्स इफ ही कंप्लेन अबाउट अ बैड टूथ, देन हिज आंट विल पुल आउट एंड दैट विल हर्ट हिम. सो ही थॉट दैट दिस आइडिया विल नॉट वर्क. देन ही फाउंड अ सोअर टो, ए गुड एक्सक्यूज. He lay in bed groaning loudly. Sid woke up. What is the matter, Tom? Then he found a sore toe. A good excuse. A good excuse means a good idea. फिर उसे अचानक एक दूसरी आइडिया याद आती है कि he found a sore toe. वो कौन सा बहाना करता है कि उसका जो sore means दर्द होना, toe means पैर का अंगूठा, उसके पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है, ऐसी वो आइडिया करता है. He lay in bed groaning loudly. और फिर वो बेड पे जाके चिल्लाते हुए बेड पे बैठ जाता है. Sid woke up. What is the matter, Tom? फिर सिड आता है वहाँ पे.
और वो बोलता है कि क्या हुआ टॉम, क्या हुआ टॉम मीन्स so then he found a good excuse means a good idea. Then he decided to tell his aunt that his toe was paining. Then what he did, by lay down on a bed means Tom was sitting on a bed and making noise if in pain. Then his friend Sid woke up and said, "What is the matter, Tom? Why are you making noise? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है?" "Oh Sid, don't touch me," groaned Tom. "What is the matter, Tom? I must call auntie." "Don't call anybody. It will all be over soon." "Sid, तुम मुझे टच मत करो." और वो चिल्लाता है, "क्या हुआ टॉम? Can I call आंटी? शॉल आई कॉल आंटी?" "डोंट कॉल एनीबडी." टॉम बोलता है किसी को भी मत बुलाओ. "इट विल ऑल बी ओवर सून." ऑल बी ओवर सून मीन्स आई विल सून बी डेड मीन्स सब कुछ ये जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, मैं मरने वाला. "बट आई मस्ट." "डोंट ग्रोन लाइक डैट." "बट आई मस्ट कॉल आंटी." "डोंट ग्रोन लाइक डैट." इस तरह से चिल्लाओ मत. टॉम, "इट्स टेरिबल." इट्स टेरिबल मीन्स भयंकर. जो तुम चिल्ला रहे हो वो भयंकर है. इस तरह से चिल्लाओ मत, मैं आंटी को बुलाता हूँ. "आई फॉरगिव यू ऑल द बैड थिंग्स यू हैव डन टू मी, Sid," said Tom, still groaning. And he was doing a thing to show that he was in pain and groaning. He said to his friend, "Say that, see whatever wrong the bad things you have done with me, I all forgive you." मैं तुम्हें क्षमा करूँगा. Forgive में क्षमा करना. "Oh Tom, Tom, please don't die." Sid ran downstairs and shouted, "Oh Tom, Tom, please don't die." Sid बोलता है कि टॉम तुम मरो मत, प्लीज़ डोंट डाई. और वो दौड़ के सीढ़ियों से नीचे जाता है और चिल्लाते हुए नीचे जाता है. Sid ran downstairs and shouted, "Oh Aunt Polly, Tom's dying. Yes, come quickly." "Oh Aunt Polly," Sid बोलता है ये आंट टॉम इज डाइंग. टॉम जो है वो मर रहा है. "Yes, come quickly," जल्दी जल्दी आओ. "Don't be silly. I don't believe that." आंट पोली बोलती है कि सिड मूर्ख जैसे बातें मत करो. "Don't be silly. I don't believe that." मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करती. I don't believe that. But she ran upstairs with Sid and Mary close behind her. Sid and Mary are the friends of the Tom. Sid और मेरी ये टॉम के फ्रेंड है. फिर भी आंट जो है वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों के ऊपर से टॉम के पास जाती है, सिड और मेरी के साथ. She said, "What, Tom? What is the matter with you?" She said, "What is the matter? Wrong. Why are you groaning?" तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? Why are you groaning? "Oh auntie, it's my sore toe. It's dead." वो बोलता है कि मेरा जो टो है वो बहुत ही दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है. "It's dead. It's dead." "Oh Tom, what is the fright you gave me? Now stop this noise and get out of bed." Then his auntie say, "What is scared you gave me?" क्यों तुम डर रहे हो? मुझे बताओ. तुम घबरा क्यों रहे हो? मुझे बताओ. "Stop this noise." ये जो चिल्लाना है वो बंद करो. "And get out of bed." और यहाँ से बेड से नीचे उतरो. Aunt Polly, it seemed dead and it hurt so much that I even forgot about my sore tooth, replied Tom. So Tom says her Aunt Polly, "Dad," so Aunt Polly, "Dad, and my toe is almost dead." मेरा जो टो है
वो सुन्न हो गया है, मर चुका है। मीन्स मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट इज़ नॉट वर्किंग, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। इट्स हर्टिंग, सिर्फ दर्द कर रहा है। आई कांट टॉलरेट दिस पेन एंड बिकॉज ऑफ दिस पेन आई फॉरगॉट माई सोअर टूथ, और उसके कारण, टो के कारण मैं अपना जो दांत हिल रहा है वो भी भूल चुका हूँ। देन आंट सेज योर टूथ what is the matter with your tooth? Your tooth, what's the matter with your tooth? It's loose and it's hurt. What is the matter with your tooth? What happened? And then Tom says one of my tooth is loose and it's hurting. फिर टॉम बताता है कि मेरा जो एक दांत है वो बहुत ही हिल रहा है और दर्द कर रहा है। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, said his aunt. Yes, there is a loose one there, but you are not going to die because of that. Mary get me a silk thread and a piece of koila from the kitchen fire. Then his aunt says, open your mouth and let me see your sore tooth, where it was paining. After looking his teeth, aunt says, yes, there is one loose tooth, but Tom, because of that you are not going to die. So Mary, one girl, was there. She was Tom's friend. His aunt told her that Mary bring one silk thread and a piece of koila from the kitchen fire. फिर उसके आंटी बोलती है कि दिखाओ मुझे, तुम्हारा जो दांत है जो हिल रहा है वो मुझे दिखाओ। हाँ, यस, वहाँ पे एक दांत हिल रहा है, लेकिन उसके कारण तुम मर नहीं जाओगी। और फिर आंट पोली मेरी को बोलती है कि एक सिल्क का थ्रेड लेके आओ और किचन से कोयला लेके आओ, मीन जलता हुआ एक कोयला लेके आओ। ओह प्लीज आंटी, डोंट पुल इट आउट, इट डजंट हर्ट एनी मोर। प्लीज डोंट आंटी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल। फिर वो टॉम बोलता है कि आंटी इसे मत निकालो, प्लीज डोंट पुल इट आउट, नाउ इट्स नॉट हर्टिंग। वो बोलता है कि अभी वो दर्द नहीं कर रहा है, इसे मत निकालो। प्लीज डोंट आंटी, आई डोंट वॉन्ट टू कम बैक होम, मीन्स नाउ इट्स नॉट हर्टिंग, एंड फ्रॉम स्कूल आई डोंट वॉन्ट टू कम बैक, और मुझे स्कूल से भी वापस नहीं आना, इसे मत निकाल। देन हिज आंट सेज, on that's the matter, that's why you are making such noise, or making such noise, means I don't want to stay at home from school. Oh, so that's why you were making such noise, you thought you did be able to stay at home from school, you are a bad बॉय टॉम। फिर आंटी बोलती है क्या तुम इसके कारण घर पे हो, तुम्हारा दांत दर्द कर रहा है, इसके कारण तुम्हें घर पे रहना है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है टॉम, यू आर अ बैड बॉय टॉम, तुम बहुत ही बैड बॉय हो। वाई? देन हिज आंटी सेज, ऑन व्हाट्स द मैटर, दैट्स वाई यू आर मेकिंग सच नॉइज, इसके कारण तुम नॉइज कर रहे हो, आवाज़ कर रहे हो। यू थॉट, मीन्स तुम सोच रहे हो कि इफ़ यू विल डू दिस, मीन्स ये अगर करोगे, दिस थिंग्स, ये अगर चीज़ें करोगे, तो देन वी विल लेट यू स्टे एट होम, कि हम तुम्हें इसके कारण घर पे रहने देने वाले हैं। सो देन यू आर सच अ बैड बॉय, लेकिन तुम एक बैड बॉय हो कि इसके कारण तुम सोचते हो कि हम तुम्हें घर पे रहने देंगे। कोयला from the fire kitchen, see the picture of the kitchen, fire kitchen, koila from the kitchen fire, means this is the picture of the kitchen fire. By this time Mary had returned. The old lady tied one end of the thread to Tom's tooth and the other end to the Tom bed post. She took the piece
of hot koila and suddenly pushed it almost into the boy's face. This time she returned, means Mary returned, and Mary brought one thread and koila, and her aunt tied one thread on his tooth. You see in this picture, one thread to Tom's tooth and another thread to the bed post. मीन जो एक थ्रेड का जो धागा है वो उसके दांत को बांधा हुआ है, दूसरा बेड पोस्ट को बांधा हुआ है. मीन्स एक थ्रेड उसके दांत को बांधा. देन हर आंटी टाइड वन थ्रेड on his loose tooth and the other one on his bed behind it like you. Can you see in the picture that bed post there? They hated one thread. They hated one thread. जो टॉम है उसको थ्रेड से नफरत होती. Tom quickly pulled back his head and now the tooth was out, hanging on the thread by the bed post. Then Aunt Polly took up the hot कोयला in front of him. फिर आंटी क्या करती है, जो जलता हुआ कोयला रहता है वो टॉम के पास लेके जाती हैं. टू मेक हिम स्केर्ड, उसको डराने के लिए उसके पास लेके जाती है. सो दैट ही विल टेक हिज हेड बैक, और वो अपना जो सर है वो साइड में करता है, पीछे करता है. सो देन टॉम गॉट स्केर्ड, और टॉम जो है वो डर जाता है, स्केर्ड ऑफ कोयला, और उसके कारण वो टॉम डर जाता है. एंड पुल बैक हिज हेड, अपना सर पीछे करता है. देन द लूज टूथ वॉज आउट, हैंगिंग ऑन द थ्रेड, जो उसका दांत है वो थ्रेड को पकड़ के बाहर आ जाता है. सो हैंगिंग ऑन द थ्रेड बाय द बेड पॉइंट्स, वो खींचने के कारण मीन्स वो सर पीछे करने के कारण उसका जो लूज वाला टीथ है वो बाहर आ जाता है. एंड सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टॉम, एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय मार्क ट्वेन. थैंक यू.